Good morning, students. How are you, students? I think you are very fine. Students, today in the English literature class, I am going to teach you a chapter from supplementary book, and the chapter is Golu grows a nose. That is in chapter 5. So all of you open your book, supplementary book. I am going to teach this chapter. And the chapter I have written in summary. I have written a brief story of this chapter. You can see Golu, a small elephant with a bulgy nose, is very curious and asks an ostrich, a giraffe, hippopotamus and a baboon difficult questions, and they are unable to answer. गोलू एक छोटा सा हाथी जिसका नाक बहुत छोटा है, वो एक शुतुरमुर्ग, एक हिप्पो, एक जिराफ और एक हनुमान को, एक बबून को क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन बहुत ही कठिन है. They are unable to answer, और लोग उसका जवाब नहीं दे पाते. Next, गोलू wants to know what does a crocodile eat for dinner. गोलू को इसको भी जानना है कि एक मगरमच्छ डिनर में क्या खाते हैं. मैना बर्ड sends him to river Limpopo to find answer. मैना बर्ड उसको लिम्पोपो रिवर में भेजते हैं, वहां पे आंसर है, इस तरह बता देते हैं. गलू रीचेस द बैंक ऑफ लिम्पोपो. गलू ने लिम्पोपो नदी के किनारे में जाके पहुंचते हैं. देयर द क्रोकोडाइल कॉट गलूज नोज. वहां पे मगरमच्छ जो है गलू का नाक को पकड़ लेते हैं. एंड answered that the crocodile was going to eat a baby elephant for dinner. और उस मगरमच्छ ने जवाब देते हैं कि वो डिनर में एक छोटा सा हाथी का बच्चा जो है उसको खाने वाले हैं. इसका मतलब है मगरमच्छ का यही जवाब है, डिनर में वो मगरमच्छ उस दिन गोलू को ही खाने वाले हैं. गोलू pulled his nose hard. गोलू ने अपना नाक को बहुत जोर से खींचा. And somehow freed them. और किसी तरीके से अपना नाक को छुड़ा लेते हैं. In the end, गोलू found his nose excessively long. और अंत में देखते हैं गोलू का नाक बहुत लंबा हो गया है. Thus गोलू got a long nose. और इसी तरह गोलू ने एक लंबा सा नाक पा लिया है. गोलू का नाक लंबा हो गया. So this is the very brief of the whole story. Okay. Now we are going to the details. Long ago, the elephant had no trunk. बहुत दिन पहले हाथी लोगों का सूंड नहीं रहता था. He had only a bulgy nose as long as a boot. उन लोगों का नाक भोथरा था और मोटा था, जैसा कि बूट का होता है. He could wiggle it from side to side, but could not pick up things with it. वो अब नाक को इधर उधर तो हिला पाते थे, मगर उस नाक से कुछ उठा नहीं सकते थे. There was a baby elephant called Golu. गोलू नाम का एक छोटा सा हाथी था. He too had no trunk, but only a bulgy nose, as small as a small boot. उसका भी छोटा सा एक नाक था, जैसे बूट का होता है उस तरह एक मोटा सा नाक था. गोलू was full of questions. गोलू बहुत क्वेश्चन पूछने वाला हाथी है. Why don't you ever fly like other birds? He asked his tall aunt, the ostrich. लंबा सा शुतुरमुर्ग नाम का एक पंछी जो है, ऑस्ट्रिच जो है पंछी, उसको पूछे कि क्यों आप उड़ नहीं सकते जैसे कि दूसरा पंछी लोग उड़ पाते हैं, आप क्यों नहीं उड़ पाते. Then he asked his tall uncle, giraffe. Here ostrich is aunt, giraffe is uncle. So this is very much humorous, funny. Okay. He asked his tall uncle giraffe
व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी? जिराफ अंकल को पूछा आपका चमड़ा में इतना स्पॉट क्यों है, इतना धब्बा धब्बा क्यों है? He asked his huge uncle the hippopotamus. बड़ा अंकल जो है, बड़ा चाचा जो है, उसको पूछे, वो कौन है? हिप्पोपोटेमस, जो कि जलहस्ती है। उसको पूछा Why are your eyes always so red? आपका आँख इतना लाल हमेशा क्यों रहते हैं? He asked his hairy uncle the baboon. वो अपने अंकल बेबून को भी पूछा, जिसका शरीर में बहुत बाल से भरा हुआ है, इस तरह बेबून को पूछा। क्या पूछा? Why do melons taste like melons? क्यों मेलॉन्स जो होता है, मेलॉन्स के तरह टेस्ट होता है? मेलॉन्स मीन्स आई थिंक वाटरमेलन, ओके? So why melons are like melons? So this is the question from Golu to the baboon. The ostrich, the giraffe, the hippopotamus and the baboon had no answers to Golu's questions. So whatever curious question, whatever difficult question Golu asked to these animals, they did not have any answer to Golu's questions. जितना सारा क्वेश्चन पूछते थे गोलू, इस क्वेश्चन का जवाब उन लोगों के पास नहीं था, क्योंकि उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत टफ है, डिफिकल्ट, कठिन है। गोलू इज अ नॉटी बॉय, दे सेड, और वो लोग यही बोलते हैं कि गोलू बहुत नटखट बेबी है, नॉटी बॉय बेबी। ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और वो लोग बोलते हैं कि गोलू बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन पूछते हैं और वो बहुत नटखट बच्चे हैं। One day Golu met the myna bird sitting in the middle of a bush. जंगल के बीचों बीच में मैना पंछी बैठे हुए हैं, उसको एक दिन गोलू जाके क्वेश्चन पूछ दिया। Met, इसका मतलब मुलाकात किया। And asked her, और उसको क्वेश्चन पूछे। क्या क्वेश्चन पूछे? What does the crocodile have for dinner? हाथी लोग डिनर में क्या खाते हैं? The myna said, go to the bank of the river of the great grassy Limpopo river and find out. और मैना ने क्या बोले? लिम्पोपो नदी जो है उसके किनारे में जाओ, जहाँ पे घास फूस भरा हुआ है, उस जगह में जाके देखो, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। गोलू went home. गोलू घर चले गए। He took 100 sugar canes. 100 गन्ना ले लिए साथ में, 50 dozens bananas, 15 दर्जन क्या लिए? केला ले लिए हैं, and 25 melons, 25 तो melons ले लिए। Then he said to his family, goodbye. I am going to the great grassy Limpopo river. I'll find out what the crocodile has for dinner. और उसके बाद वो अपने परिवार को क्या किया? अलविदा बोल दिए और बोल के गए कि मैं लिम्पोपो नदी के घास जमीन के किनारे में जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके मैं ये क्वेश्चन का आंसर लाने वाला हूँ कि मगरमच्छ लोग क्या खाते थे डिनर में। He had never seen a crocodile and did not know what one looked like. वो कभी मगरमच्छ नहीं देखे थे और मगरमच्छ किस तरह दिखता है उसको ये भी पता नहीं था। He made a python and asked him. एक पाइथन के साथ मुलाकात हुआ। पाइथन किस तरह देखते में जीव है? छिपकली जैसा है, बड़ा सा है। And one type of snake you can say. And did not know. Golu met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? और पाइथन के साथ मुलाकात उसका हुआ और उस पाइथन को बोले, क्या आप जानते हैं, आप कभी देखे हैं क्रोकोडाइल कहाँ है? What does he look like? वो किस तरह दिखते हैं? What does he have for dinner? और डिनर में क्या खाते हैं? The python uncoiled himself from the branch of a tree. एक पेड़ का टहनी में वो अपने आप को क्या करते थे? कॉइल बना के रखते थे, मतलब उसको उस टहनी को वो मोड़ के थे, टहनी के चारों ओर में वो थे और वो वहाँ से अपने आप को छुड़ाए और क्या किए? But said nothing, कुछ नहीं बोले। Golu politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. गोलू ने फिर से उसको कॉइल करने के लिए मदद की, मतलब टहनी के चारों ओर में रैपिंग के लिए मदद किए और उसके बाद गुड बाय बोल के चले गए।
गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, चलते गए और गन्ना खाते गए। बनानास एंड मेलन्स, और बनाना मेलन्स वो भी खाते गए। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासिली रिवर। कुछ दिन के बाद क्या किए वो पहुंच गए उस किनारे में। किस किनारे में? घास जमीन जहाँ पे है लिम्पोपो नदी के साइड में। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड। और नदी के किनारे में क्या देखे? एक बड़ा सा पेड़ का तना कटा हुआ है, उसको देखे। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्चुअली वो पेड़ का कटा हुआ ऐसे नहीं था, वो एक मगरमच्छ है जो कि उसको देखते ही आँख थोड़ा खुले और फिर इसको बंद कर दिए। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल? और उस मगरमच्छ को ही गोलू ने पूछ दिया, क्या तुम कभी क्रोकोडाइल को देखे हो? क्यों? क्योंकि गोलू को पता नहीं था क्रोकोडाइल किस तरह होता है, कभी नहीं देखे थे। इसलिए क्रोकोडाइल को पूछे, क्या आप क्रोकोडाइल को देखे कभी? The crocodile winked again and lifted half his tail out of the mud. वो मगरमच्छ ने क्या किया? अपना आँख को फिर खुले और बंद किए और उसके बाद क्या किए? अपना पूंछ का आधा हिस्सा वो कीचड़ के बाहर निकाले। Come here, little one, said the crocodile. Why do you ask such questions? प्यारा सा बच्चा, तुम मेरे पास आओ और इस तरह क्वेश्चन तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? I want to know. डॉट डॉट डॉट। That means गोलू ने बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि Come close, little one, for I am the crocodile. मेरे पास आओ क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। And he shed crocodile tears to show it was quite true. और वो अपना आँख से पानी टपके और ये दिखाना चाहते हैं कि उसको बहुत प्यार करते हैं गोलू को और इसीलिए उसको पास में लाना चाहते हैं। तो क्रोकोडाइल टीयर मतलब ऐसा आंसू है जो कि बिना कारण बहाया जाता है। ओके, सपोज समबडी इज क्राइंग फॉर योर unhappiness, okay, and out of your vision he is just thinking of your harm, thinking of your loss. That means the tears and the fellow feeling he or she showed for you, that was crocodile's tears. जिस तरह आंसू तुम्हारे लिए बहाए, जिस तरह वो दुख पश्चाताप को दिखाए तुम्हारे लिए, वो किस तरह था? crocodile's tears. ओके, नदी से या तो पानी से क्रोकोडाइल जब उठते हैं तब उसका आँख से पानी टपकते हैं। असली में क्या होता है? उसके अंदर में पानी घुस जाता है और जब उठते हैं और पलक झपटते हैं तो उस पानी को गिर जाता है, देखते सबको लगता है जैसे कि वो दुख का पानी बहा है। असली में उस तरह वो उसका आदत है। ओके, वो बेकार का है, वो एक्चुअली आंसू नहीं है। सो हियर वी कैन सी क्रोकोडाइल्स टीयर। ओके, गोलू वाज अफ्रेड बट he sat down on the bank and said, गोलू को डर लगा मगर वो नदी के किनारे में बैठ के बोले, क्या बोले? You are the very person I was looking for. अच्छा, आप क्रोकोडाइल हैं, तो आपको ही तो मैं ढूंढ रहा था। Please tell me what you have for dinner. मुझे कृपया बताएंगे आप डिनर में क्या खाते हैं? Come here, little one, and I whisper the answer to you, said the crocodile. और क्रोकोडाइल ने बोले, अरे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा ना आंसर। Golu put his head down close to the crocodile's snout, and the crocodile caught him by the nose. गोलू क्या किए? अपना मुंडी को थोड़ा खिलाए नदी के किनारे से और क्रोकोडाइल का स्नाउट जो होता है, क्रोकोडाइल के लंबा सा हिस्सा जो होता है, उसके सामने अपना मुंडी को हिलाए और क्रोकोडाइल का स्नाउट के सामने हिलाने के बाद क्या हुआ? क्रोकोडाइल caught him by the nose. और उस मगरमच्छ ने, उस क्रोकोडाइल ने गोलू का नाक को पकड़ लिया। I think, said the crocodile, today baby elephant will be my dinner. और उसके बाद उस क्रोकोडाइल ने बोलने लगे, मुझे लगता है आज मैं डिनर में एक छोटा सा हाथी खाने वाला हूँ। So this is the answer of Golu's question. Golu was actually trying to find out the answer of this question. What does a crocodile have for dinner? And now he has got the answer. Crocodile himself told that he was going to eat a baby elephant for the dinners.
Okay. Let me go, said let me go. You are hurting me, Mr. Crocodile screamed गोलू. गोलू क्या किए? डर के मारे चिल्लाए और बोले मुझे छोड़ो, मुझे लगता है तो मुझे दुख दे रहे हो, दर्द दे रहे हो. The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. और जो पाइथन के साथ उसको पहले मुलाकात हुआ, मगरमच्छ के से पहले, वो पीछे पीछे आए थे गोलू के देखने के लिए क्या होता है, और वो गोलू को सलाह दिए, परामर्श दिए कि जोर से खींचो, नहीं तो वो तुम्हें खींच के नदी के अंदर में ले जाएंगे. गोलू sat back on his little haunches. गोलू अपना पिछवाड़ा के ऊपर में बैठ गए and pulled और जोर जोर से खींचने लगे. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of its tail. और मगरमच्छ भी अपना शरीर को नदी में डुबा दिए और अपना पूंछ से पानी को भी क्या कर दिए, धुंधला कर दिए. ओके, क्रीम का कलर बना दिए. And he also pulled and pulled, और वो भी जोर से खींचने लगे गोलू का नाक को. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, "Let's pull harder." और पाइथन ने उसके बाद क्या किए, गोलू का पूरा शरीर को मोड़ दिए अपना शरीर से, और उसके बाद गोलू को बोले जोर से खींचो. गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled. गोलू क्या किए, अपने 4 पैर को कीचड़ में दबा दिए और जोर से खींचे. The nose kept on stretching, और नाक लंबा लंबा होते गए. At each pull the nose grew longer and longer and it hurt गोलू. हर बार खींचने के कारण गोलू का नाक लंबा होते गए और गोलू को बहुत दर्द भी होने लगे. The nose was now 5 feet long. अब नाक उसका 5 फीट लंबा हो गए. But it was free at last. मगर अंत में उसका नाक वो छुड़ा पाए उस मगरमच्छ से. Golu sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hang it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू क्या किए, अपना नाक को बड़ा सा एक केला पत्ता से क्या किए, ढक दिए, मोड़ दिए और उसको टांग के रख दिए नदी के ऊपर में ठंडा होने के लिए. नदी का पानी ठंडा है और उस पानी के ऊपर में वो अपने नाक को टांग दिए ठंडा होने के लिए, क्योंकि खींचने के कारण उसका नाक में गर्मी पैदा हो गया है. उस गर्मी को अभी ठंडा करना है. At the end of the second day, a fly came and stung Golu on the shoulder. दूसरा दिन के अंत में एक मक्खी आए और गोलू का कंधे पे एक डंक मार दिए. गोलू lifted his nose, long nose, and with it hit the fly dead. और गोलू क्या किए, अपना नाक को उठा लिए, लंबा नाक को, और उसी नाक से जोर से उस मक्खी को मार दिए और मक्खी मर गई. एडवांटेज नंबर 1, hissed the python. अभी पाइथन ने अपना आवाज से बोलने लगे, अभी गोलू देखो तुम्हारा नाक लंबा हो गया, तो सुविधा नंबर 1 तो मिल गया. क्या सुविधा है? You could not have done it with a small nose. अगर तुम्हारा नाक छोटा रहता तो इस मक्खी को नहीं मार पाते. Try and eat a little now. और अभी क्या करो, थोड़ा खा लो, ठीक है. गोलू put out his trunk and plucked a large bundle of grass. गोलू क्या किए, अपना सूंड को उठाए और बहुत बड़ा सा एक गुच्छा, घास का गुच्छा खींच के उठा लिए. He dusted it against his forelegs. सामने पैर में वो धूल को झाड़ लिए घास फूस से, and stuffed it into his mouth. अपना मुंह में घुसा दिया. Advantage number 2, hissed the python. और अभी उस पाइथन ने अपना आवाज से बोलने लगे, देखो अब दूसरा सुविधा तुम्हें मिल गया है. You could not have done it with a small nose. अगर तुम्हारा नाक छोटा होता तो इतना सारा घास फूस एक साथ में उठा नहीं पाते. Don't you think the sun is too hot now? अब तुम्हें क्या लगता नहीं है बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी लग रहा है, बहुत नहीं लग रहा है तुम्हें? Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. गोलू ने क्या किए, कुछ कीचड़ अपना सूंड से उठाए नदी के किनारे से और अपने मुंडी पे लगा दिए ठंडी करने के लिए. Advantage number 3, he is the python.
आप सांप ने, पाइथन ने अपना आवाज में जवाब दिए। अभी तुम्हें तीसरा सुविधा मिल गया है। You could not have done it with a small nose. अगर तुम्हारा नाक छोटा होता तो नदी के किनारे से कीचड़ उठा के तुम सर में नहीं डाल पाते ठंडा करने के लिए। Thank you, Mr. Python, said गोलू gratefully. गोलू क्या किए? गोलू आभारी बन गए और वो पाइथन को थैंक यू बोले, धन्यवाद जताया। I'll remember all this. जो कुछ हुआ है अभी, जो सुविधा हो जो है, इसको मैं याद करूंगा। Now I'll go back to my family. अभी मुझे जाना है घर में लौट के। So this is all about the story. This story is written by a very good, a very famous writer, Rudyard Kipling. Okay, and he is writing whatever it was, that is simplified and abridged. उसको सरल करके, छोटा करके यहाँ पे लिया गया। Okay, so I think you love this story. You would like to read this story once again of your own. I think you will do that. Okay. And after reading the story aloud and with a great speed, you would understand, you would like to understand the whole story. Okay, and you have to do the question answers whatever given in the exercise. There is not much important of the questions from the exercise, because I will make the question answers from inside the book, inside the chapter, but you will try to do the question answers of your own, and if any problem you can ask me. Okay, so today up to this, bye bye all of you, have a great day.